So hi guys, welcome back to the new video. I will be teaching about the different doctrines which are prevalent in state practices. So the first doctrine which we'll read about is Tobar doctrine. So in this doctrine, Mr. Carlos R. Tobar, who was the former minister of Ecuador in 1907, expressed deep concern over the political uh, political instability in earlier 20th century in Latin America. Persistent revolutions and warfare plagued the region, and as per this doctrine, there has to be denial of recognition to the de facto governments springing from revolution against the constitutional order. ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो प्रिंसिपल्स हैं which are not to recognize any state in the whole of Latin America which has come into existence because of rebellion, right? This doctrine removed direct intervention in internal matters to stop and prevent political instability. This doctrine clearly violated Westphalian principles since it gave clearance to foreign manifestly in manifesting in internal matters. ये मैंने गलत स्पेलिंग लिखी हुई है तो सॉरी गाइस, रियली सॉरी. यस, manifesting, festing, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल दो स्टेट्स हैं, ये दो स्टेट्स हैं, ये S1 है, ये S2 है. ठीक है, ये स्टेट, इस स्टेट S2 कैन इंटरफेयर in matters of S1. So this is the crux of this doctrine, right? इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कवि बस यही कह रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन which is of 1930. So there was it was propounded by Estrada, who was the Mexican Secretary of Foreign Affairs in 1930. This doctrine argues that recognition of government should be based on de facto existence rather than on its legitimacy. It favors declaratory theory or the evidentiary theory. ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दीज थ्योरीज. ठीक है, दिस डॉक्ट्रिन फेवर्स स्टेट recognition through the lens of declaratory or evidentiary theory. As per this doctrine, the act of recognition of state does not create legitimacy. On the contrary, whenever state fulfills the criteria of statehood, it becomes a state irrespective of state recognition granted by other states. The act of recognition by other states is damning on the very concept of sovereignty. Even though India has not officially issued statement that it favors the Estrada doctrine, but in practice it adheres to it. मतलब भाई, अगर तुम एक स्टेट हो, जैसे मैंने यहाँ समझाया, अगर तुम एक सॉवरेन स्टेट हो, तुम्हारे पास PTGR के प्रिंसिपल्स भी हैं. ठीक है, तो भाई अगर ये S2 है, ये S3 है, ये तुम्हें रिकग्नाइज करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, सीधी बात. ठीक है, और इंडिया की कोई डॉक्ट्रिन, जैसे इंडिया की कोई सिक्योरिटी और मिलिट्री डॉक्ट्रिन नहीं है, उसी तरीके से इस चीज़ की भी कोई डॉक्ट्राइन नहीं है कि हमें किसी के फॉरेन अफेयर्स में दखल अंदाजी करनी है या नहीं करनी है. लेकिन बाय प्रैक्टिस इंडिया यही फॉलो करती है. नेक्स्ट इज द Stimson doctrine. This doctrine was enunciated by the US Secretary of State Henry L. Stimson in 1931 when Japanese troop took over the Manchuria until the part of China and set up the puppet state of Manchukuo. ठीक है, अब आपका एक काम है कि आप मंचूरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वो मानचुका कैसे बना ये आप कमेंट्स में बताएंगे. ठीक है, ये धीरे धीरे आप वीडियो पॉज करके इंटरनेट पर सर्च करके करिए. ठीक है, इससे आपका एक्टिव रिकॉल होगा
कि ये क्यों पढ़ा है हमने, ठीक है, प्लस याद रहेगा इजीली, क्योंकि आपको याद रहेगा कि यार मैंने मेहनत करी है। अब मेहनत हमेशा याद रहती है, सच बताऊँ तो मेहनत हमेशा याद रहती है, राइट। स्टिम्सन डॉक्ट्रिन मैंने आपको बताया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। और एज पर दिस डॉक्ट्रिन यूएसए वुड नॉट रिकग्नाइज एनी टेरिटोरियल चेंजेस बॉट अबाउट बाय फोर्स अलोन। यूएसए कुछ भी मानेगा नहीं अगर फोर्स, सिर्फ फोर्स से कोई चीज़ लाई गई है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Interestingly, this doctrine got resonated in various UN Security Council resolutions which did not accord recognition of territorial changes through use of force, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है। टर्की ऑक्यूपाइड नॉर्थ सिप्रस विच वॉज लीगली हेल्ड इनवैलिड, विच वॉज द रेजोल्यूशन 541 ऑफ 1983, देन रेजोल्यूशन 662 ऑफ 1990। इराक इन्वेटेड कुवैत, ठीक है। हम सबको पता है कि क्या हुआ था, हम बस बात नहीं करना चाहेंगे उस विषय में क्योंकि बहुत खून खराब था। इट वॉज हेल्ड लीगली इनवैलिड which was null and void. So in this doctrine it is stated that there should be no recognition on the basis of territorial changes which are brought about by force alone. Understood? Stimson doctrine, even though it was propounded in 1931, the specific context of Japanese invasion of Manchuria is relevant today. The basic argument of this doctrine is to not recognize any changes जो force के through आए हैं। ये अभी भी relevant है। रशिया क्या यूक्रेन हो गया, ठीक है, या हो गया इज़राइल और फ़लस्तीन, ठीक है। अभी जो फोर्स है इन कंपैरिजन टू बिफोर ऑफ यूएन कम होता जा रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये दोनों इराक इन्वेटेड कुवैत, ये रिपीटिशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं, एक्टिव रिकॉल करते हैं। टोबा डॉक्ट्रिन में क्या बोला गया है? ड्यूटी नॉट टू रिकग्नाइज स्टेट्स विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू रिबेलियस और डायरेक्ट इंटरवेंशन। एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन क्या कहती है? फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ स्टेटहुड। इसमें डिक्टेटरी और एविडेंशियल थ्योरी की बात करी गई है, एविडेंशियरी थ्योरी, राइट। ड्यूटी नॉट टू रिकग्नाइज स्टेट्स विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू रिबेलियस प्लस डायरेक्ट इंटरवेंशन, ठीक है। ये है टोबा डॉक्ट्राइन, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन हो सकता है पर हमें रिकग्नाइज नहीं करना है। फिर है एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन, ठीक है, और फुलफिलमेंट क्या क्या रहेगी। फिर है स्टिम्सन डॉक्ट्राइन, नो रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल चेंजेस बॉट बाय फोर्स अलोन, ठीक है। अब हम देखेंगे इंसर्जेंसी और बेलिजरेंसी का फ़र्क। इंसर्जेंसी क्या होता है? इज़ अ स्टेटस ऑफ पोटेंशियल बेलिजरेंसी एंड बेलिजरेंसी इज़ द फाइनल कैटेगरी ऑफ चैलेंज टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब इंसर्जेंसी इज़ अ ग्लोरियस फॉर्म ऑफ बेलिजरेंसी। इंसर्जेंसी यहाँ पे लिखा है इंसर्जेंसी इज़ अ ग्लोरियस फॉर्म ऑफ बेलिजरेंसी, राइट। ये छोटे छोटे कोट्स हैं, आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, काफ़ी अच्छा लगेगा। आर्टिकल 1 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में पीटीजीआर की बात करी हुई है, जिसमें जी है गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें जी है गवर्नमेंट। देखिए अब गवर्नमेंट भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि कैपेसिटी गवर्नमेंट की क्या है, या कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट है, या कैपेसिटी टू रूल है या नहीं है एक सरकार की, ठीक है। जैसे कुछ सरकारें होती हैं जो सरकार बना लेती है लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है रूल करने की, उनके पास क्या पता मैन पावर ना हो, उनके पास क्या पता इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ना हो रूल करने की, राइट। तो इंसर्जेंसी वर्सेस बेलिजरेंसी की बात करेंगे अब हम। इन इंटरनेशनल लॉ बेलिजरेंट्स आर गिवन सर्टेन राइट्स सच एज राइट टू एंटर इनटू अ ट्रीटी, whereas insurgency is not the concern of international law since it is an internal matter. Insurgency primarily refers to a stage of riot which is not localized. It refers to an armed rebellion against the government. On the contrary, belligerency is not localized, it is spread through the substantial part of the territory, ठीक है। It indicates a state of civil war with प्रॉपर आर्म्ड फोर्सेस। डिफरेंस यही है कि इंसर्जेंसी इंटरनल मैटर है,
इसलिए आईएल का इशू नहीं है। बेलिजरेंसी एक्सटर्नल मैटर है क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जो पीटीजीआर का जी है, ठीक है, जो आर्टिकल 1 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में है, इसलिए ये आईएल का पार्ट है। बस ये ध्यान रखना है अपने को। सो यहाँ पे कंडीशंस लिखे हुए हैं। टू बी सेटिस्फाइड फॉर द रिकग्निशन ऑफ बेलिजरेंसी, movement shall be of general character. The rebels shall have in possession a substantial part of national territory. The rebels in principle want to bind themselves with the warfare laws and the other international duties. The rebels should have proper armed force. If the above conditions have been fulfilled by the rebels, then they may be recognized by other existing states and shall enjoy international rights. ठीक है, दीज आर दी एसेंशियल्स 1 2 3 4 5। देखिए, मूवमेंट होनी चाहिए, वो जनरल कैरेक्टर की होनी चाहिए, ठीक है, इनके पास पोजेशन होना चाहिए एक सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ नेशनल टेरिटरी का, ठीक है। द रेबल्स इन प्रिंसिपल वांट टू बाइंड देमसेल्व्स विद वॉरफेयर लॉज एंड अदर इंटरनेशनल ड्यूटीज़, मतलब वो इंटरनेशनल ड्यूटीज़ में अपने आप को ढालना चाहते हैं, ठीक है। द रेबल्स शुड हैव प्रॉपर आर्म्ड फोर्सेज एज वेल. If the above conditions have been fulfilled by the rebels, then they may be recognized by other existing states and shall enjoy international rights. Very easy. अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट का रिकग्निशन, ठीक है। इसमें क्या होना है, कैसे होना है, ये मैं आपको सब समझाऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इफ़ यू वॉच्ड इट टिल हियर, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ ग्रेट अहेड. बाय.